Welcome, dear students. This is our sixth lecture on the band theory of solids or the Kroning-Penney model. And in today's lecture, we will talk about three topics. Number one, we will prove that the number of energy states in a band equals the number of cells in the crystal. And number two, we will talk about the band structure, that is the graph between energy and the wave vector. And based on the band structure or the Brillouin zone, we will differentiate between the three types of solids, that is metals, insulators, and semiconductors. So let us start. We have to prove that the number of energy states, जिनको हम orbitals भी कहते हैं, energy state is also called as orbital, कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन physically रह सकता है. We have to prove that the number of energy states in a band equals the number of unit cells in the crystal. तो अगर number of energy states जो है उसको हम small n से denote करें और जो number of unit cell है उसको तो हम capital N से denote करते ही हैं. So that means we have to prove that n equals capital N. यानी कि हर कोई यूनिट सेल एक एक एनर्जी स्टेट कंट्रीब्यूट करती है टू द क्रिस्टल. सो लेट अस स्टार्ट. वी विल कंसीडर अ वन डायमेंशनल क्रिस्टल और जो इसमें नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगे वी विल अज्यूम दैट इज इवन एंड द नंबर ऑफ दोज प्रिमिटिव यूनिट सेल इज कैपिटल N. So capital N denotes the number of primitive unit cells. अच्छा, ये जो क्रिस्टल है इसका लैटिस कांस्टेंट उसको हम A से डिनोट करेंगे. लैटिस कांस्टेंट is denoted with A और जो टोटल लेंथ इस क्रिस्टल की है उसको हम कैपिटल L से डिनोट करेंगे. So it means कि अगर हम टोटल में जो लेंथ है that is L, this total length L should be equal to length accommodated or occupied by one unit cell, that is A. तो इसी तरह हमारे पास टोटल में कितने यूनिट सेल्स हैं N. So that means we get expression that L should be equal to N times A. Because L is the total length, A is the length occupied by one unit cell, occupied by each unit cell. और इसी तरह हमारे पास कितने यूनिट सेल्स हैं कैपिटल N. सो N टाइम्स A शुड बी L. अच्छा, equation 1 gives us the block wave function, that is the wave function which is what I mean to say obeyed by the block electron. That is an electron which moves in a periodic potential as given by the Kroning-Penney model. Acha, we have to impose a boundary condition because the potential is periodic. So that means कि जो wave function का value होगा at some position x, that should be its value at another position x plus L. तो ये बाउंड्री कंडीशन जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे. तो एक तो हम लिखेंगे कि
psi of x कितना मिलेगा हमें? तो ऑब्वियसली दैट विल बी e raised to power I k x times u of x. We have to put this equal to psi of x plus l. यानी इक्वेशन 1 में जहां कहीं पे x है उसको हमने रिप्लेस करना है विद x प्लस एल. सो हमें e रेज टू पावर i k टाइम्स x था, तो x की जगह लिखेंगे x प्लस एल इंटू फिर था u ऑफ x, तो वहां पर भी हम लिखेंगे u ऑफ x प्लस एल. तो इस तरह हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में. सो लेट अस अप्लाई दिस बाउंड्री कंडीशन हियर इन इक्वेशन नंबर 1. तो वी विल गेट e raised to power I k times x plus L into u of x plus L. This is psi of x plus L और राइट हैंड साइड पे हमने सिंपल लिखा है psi of x. अच्छा, ये जो प्लेन वेव है u of x, it obeys the periodicity, यानी कि they are both equal. तो we have got equation number 2. According to the periodicity of plane wave solutions of Schrodinger's equation, this u of x plus L equals u of x. So that means we can cancel these two on both sides. So that means we are left with e raised to power I k times x plus L equals e raised to power I k x. तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, हम उसका रिवर्स करेंगे. तो वी कैन राइट e raised to power I k times x into e raised to power I k L. तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिस आर सेम यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं. तो वी कैन गेट I k times x plus L. अच्छा, राइट हैंड साइड पे है e raised to power I k x. तो this I k x and this I k x will get cancelled. तो then we are left with e raised to power I k L is equal to राइट हैंड साइड पे हमें 1 मिलता है. अच्छा, ये जो e raised to power I थीटा है, इसको हम कोसाइन और साइन फंक्शन में लिख सकते हैं. इट इक्वल्स cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा. अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? KL. तो वी कैन राइट दिस एज cos ऑफ KL प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ KL इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देयर इज ओनली वन विच इज अ रियल नंबर, सो प्लस आयोटा टाइम्स 0. राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी नंबर यानी कि कोई है ही नहीं, यानी कि आयोटा का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं. तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है दैट साइन के एल इक्वल्स 0 एंड कॉस के एल इक्वल्स 1. सो वी गेट कॉस ऑफ के एल इज इक्वल टू 1. अब हमें देखना है दिस के एल इज द एंगल, तो हमें देखना है कि what are the values of angle when cosine of angle equals 1 and when cos of angle equals 1, then the angle yani KL, this angle should be equal to even इंटीग्रल. इवन का मतलब है 2n, इवन इंटीग्रल टाइम्स पाई. तो KL हमें 2n पाई मिलता है. तो यहां से अगर हम k के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहें, k विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई l और हम n आगे रखेंगे. सो n इज एन इंटीजर. सो these are the allowed values of the wave vector. That means these are the allowed values of k and k gives the energy state. तो यहां से हमें
के हमें मिलता है n टाइम्स 2 पाई बाय l। तो अगर हम यहां से n के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो वी विल गेट l बाई 2 पाई टाइम्स k। और n तो एक इंटीजर है, तो it can have value 0, plus minus 1, plus minus 2, and so on. So this is the quantum number. N stands for quantum number. So this N gives us the number of energy states up to a value of wave vector k. तो अगर हम ये देखना चाहें कि in a small interval dk, what are the number of electron energy states, तो हमें differentiate करना पड़ेगा equation 3 को। तो we will differentiate on left hand side, we will get dn, l is a constant, 2 pi is a constant, तो differentiation होगी k की। So we will get dn equals l by 2 pi dk. What is this? This dn gives me the number of energy states from k to k plus dk. That means in a small wave vector interval dk कितनी energy states हैं। Supposing हमें एक बैंड में देखना है कि what is the total number of energy states. So that means we have to integrate this equation. अगर हमें देखना है कि पहला जो बैंड है उसमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स कितनी है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट। एंड व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? के वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए। रिमेंबर फॉर द फर्स्ट बैंड, अगर हम पहले बैंड की बात करें या फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बात करें तो उसमें k का वैल्यू जो है दैट वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए। So we have to integrate this equation. So we will integrate on both sides. So left hand side पे integral and differential will go. So we will get n, यानी the total number of energy states in a band. तो right hand side पे हमें limits of integration apply करने पड़ेंगे। K varies from minus pi by a to plus pi by a. So let us integrate. तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल विल गो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें n मिलेगा। अच्छा, जब हम बैंड स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये बैंड स्ट्रक्चर ग्राफ जो है ये हमें इवन फंक्शन मिलता है। दिस इज E प्लॉटेड वर्सेस K, यानी E इज इवन फंक्शन ऑफ k। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम k का कोई पॉजिटिव वैल्यू लें, सपोजिंग दिस, और k का एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव वैल्यू लें लाइक दिस, तो हमें एनर्जी का एक ही वैल्यू मिलता है। दैट मीन्स एनर्जी of a positive wave vector equals energy corresponding to same wave vector with a minus sign. तो अगर ऐसा हो तो फिर इंटीग्रल को हम ट्वाइस लिख सकते हैं। वी कैन चेंज द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई ए, लेकिन फिर हमें इंटीग्रल के आगे ट्वाइस लिखना पड़ेगा। यानी कि if we have an even function of x, f of x, and the limits of integration are say minus m to plus m, and this f of x is an even function. If this is even function of x, तो इसको हम लिख सकते हैं twice, और limits of integration 0 to m रखेंगे, f of x dx। ये कहने का मतलब है। So that means इसको हम लिख सकते हैं as l by 2 pi, और फिर लिखेंगे twice
इंटीग्रल 0 टू पाई बाई ए इंटू डी के। तो ये हम कर सकते हैं। ओके, तो नाउ integral and differential will go, so this 2 and 2 will go, so we are left with L by pi into k with limits of integration from 0 to pi by a. So obviously this will be equal to L by pi times k का जो वैल्यू है आएगा pi by a, then minus 0 which will not be effective, so pi and pi will go, so we get L by a. तो हमें n मिलता है L by a, या हमें n और a को मल्टीप्लाई करें तो हमें n टाइम्स a मिलता है इक्वल टू n. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. अच्छा, केपी मॉडल में n इज द नंबर ऑफ सेल्स और जो लैटिस कांस्टेंट है वो एक्चुअली a प्लस बी होता है, लेकिन हम उसमें एक assumption लेते हैं that b tends to 0, then a plus b equals L. So the total length, which is L, should be equal to what is the number of unit cells times what is the length occupied by each unit cell. Right? So L should be equal to n times एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान कितनी डिस्टेंस है a plus b, but in Kroning Penney model b tends to 0, so we will neglect b, so we get L equals n times a. तो अभी हमें L मिला n small n times a. This n, capital N, is number of cells, and this small n is number of energy states of electron. तो जब हम इन दो को कंपेयर करते हैं, we get n is equal to capital N. The number of electron states in a band equals to the number of unit cells in the crystal. So this was what we had to prove. So that means that each primitive cell contributes exactly one independent value of K, that is one energy state. और चूंकि एक स्टेट में एट मोस्ट दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो देयर आर टोटल n energy states in a band where n is the number of cells, और हर एनर्जी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. सो दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इन अ सिंगल बैंड इज ट्वाइस n. n इज द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स. एक एनर्जी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल number of electrons which can be occupied maximum is twice n. Next, we shall talk about band structure. Band structure is basically a graph which we plot between energy, that is E, and wave vector, that is K. तो जो हमें इनके दरमियान ग्राफ मिलेगा तो उसको हम बैंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं.
तो दिस इज द बैंड स्ट्रक्चर। तो जो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड है इसको हम जीरो ऑफ एनर्जी मानेंगे। दिस इज टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। यहां से यहां तक ये सारा का सारा वैलेंस बैंड है एंड दिस इज द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। तो इसी को हम ऑरिजिन ऑफ एनर्जी मानेंगे, यानी इसको हम एनर्जी देंगे वैल्यू जीरो। तो उससे ऊपर जो एनर्जी वो पॉजिटिव होगी और अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो देयर विल बी नेगेटिव एनर्जी। एंड यहां से ऊपर की तरफ जाएं तो वैलेंस बैंड स्टार्ट होता है, तो इसको हम कहेंगे बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। ये पॉइंट जो है उससे ऊपर कंडक्शन बैंड स्टार्ट होता है, तो दिस इज द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। अच्छा, तो कंडक्शन बैंड में अगर कहीं पर भी हम एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखना चाहें विच हैज गॉट वेव वेक्टर के, तो यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड बैंड गैप। बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी है उसको हम बैंड गैप कहते हैं। उसको हम ई से डिनोट करते हैं। अगर हम बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड की एनर्जी को डिनोट करें विद ई सी और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड की एनर्जी को डिनोट करें विद ईवी, देन ई सी माइनस ईवी गिव्स दैट बैंड गैप। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव वेक्टर है के, तो एक तो उसको एनर्जी मिलेगी ईजी प्लस यहां से लेके यहां तक जो इसकी एनर्जी होगी दैट विल बी इट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर बाय ट्वाइस मास। तो मोमेंटम स्क्वायर विल बी एच बार के का स्क्वायर विच इज मोमेंटम, सो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस मास, and that will be mass of electron with S star. Me denotes mass of electron, star का मतलब है effective mass, जिसके बारे में हम previous lecture में बात कर चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्रॉनिंग पेनी मॉडल के पोटेंशियल में होता है तो इसका मास जो है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन मास। सो द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड हैज द फॉर्म, एक तो इसमें बैंड गैप आएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज h bar square k square by 2me. Here me star is the effective mass of electron. तो इसी तरह अगर हम वैलेंस बैंड में कहीं पे एनर्जी देखना चाहें सपोजिंग दिस, तो वैलेंस बैंड में बेसिकली ये फील्ड होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, तो उसका जो इफेक्टिव मास है उसको हम एम पी स्टार से डिनोट करेंगे। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी h बार स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस मास दैट इज एम पी स्टार। क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई तो उसको हम होल कहते हैं। होल इज अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो और चूंकि ये एनर्जी दिस ऑरिजिन से नीचे है तो इट विल बी नेगेटिव। So this is how we denote energy of a hole in valence band minus h bar square k square by twice mp star, where mp star is the effective mass of the hole. अच्छा, बैंड स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंड गैप कैन बी डायरेक्ट बैंड गैप और इट कैन बी इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो इनमें फर्क क्या है? तो याद रखें कि इनमें फर्क ये है कि अगर हम अलोंग वर्टिकल एक्सिस एनर्जी प्लॉट करें
और अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के प्लॉट करें। बेसिकली अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस अभी तक हमने के प्लॉट किया था, इसको हम h बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स मोमेंटम। सो इट डज नॉट मैटर कि चाहे आप के प्लॉट करें, वेव वेक्टर प्लॉट करें, या इसको h बार टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो इट इज अ स्केलिंग फैक्टर, यू विल गेट मोमेंटम। तो नाउ वी आर प्लॉटिंग एनर्जी वर्सेस मोमेंटम। मैं फिर से बता दूं कि मोमेंटम और वेव वेक्टर में कोई फर्क नहीं है सिवाय स्केलिंग फैक्टर h बार, रिड्यूसिबल प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो ऐसे मटेरियल्स की जिनका टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड को हम टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड जो है, ये देखें, उसका जो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड अगर ये बिल्कुल वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, द टॉप ऑफ कंडक्शन बैंड is vertically at the top of valence band. Sorry, this is bottom of conduction band and this is top of valence band. तो जब हम एनर्जी वर्सेस मोमेंटम या एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर ग्राफ प्लॉट करें, अगर हमें बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड मिलता है एग्जैक्टली अबव द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, तो इस बैंड गैप को हम डायरेक्ट बैंड गैप कहते हैं। तो डायरेक्ट बैंड गैप में एन इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट फ्रॉम द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इन द वैलेंस बैंड, यानी दैट इज दिस टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, इससे इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली शिफ्ट कर सकता है टू द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, यानी कि बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड. So such a transition in which a photon excites an electron from the valence band to the conduction band, and these are the examples: gallium arsenide, indium gallium arsenide, cadmium sulfide, cadmium selenide, cadmium telluride, zinc sulfide, lead selenide. These are all examples of materials which have got the direct band gap. Now let us go to indirect band gap. This is the example of indirect band gap. यहाँ पे आप देखते हैं कि this is the top of valence band and this is the bottom of conduction band. और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली सिर्फ एनर्जी की वजह से, एनर्जी गेन करने की वजह से वैलेंस बैंड के टॉप से कंडक्शन बैंड के बॉटम में नहीं जा सकता। इसको एक तो एक ट्रांजिशन करनी है वर्टिकल और दूसरी करनी है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन में it needs energy. Sorry, this is the horizontal and this is the vertical. तो वर्टिकली इसको ऊपर जाना है तो इट हैज टू गेन एनर्जी। तो वर्टिकल ट्रांजिशन भी करनी है जिसमें उसको एनर्जी जरूरत पड़ेगी, और हॉरिजॉन्टली भी जाना है, दैट मीन्स मोमेंटम विल चेंज। सो दैट मीन्स के जो इनडायरेक्ट बैंड गैप है, यानी कि वो मटेरियल जिनमें टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड वर्टिकली बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड नहीं होता है, तो इस बैंड गैप को हम इनडायरेक्ट बैंड गैप कहते हैं। तो अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ले जाना है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो एक तो हमें उसको ऊपर भी ले जाना है, और ऊपर ले जाने में वी नीड एनर्जी, तो इसको एनर्जी भी देनी है, और उसको दाएं या बाएं भी ले जाना है, बिकॉज ये दोनों बैंड्स के टॉप और बॉटम डिस्प्लेस्ड हैं। तो
जब हम इसको हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेस करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड मोमेंटम. सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इन द वैलेंस बैंड to the lowest energy state in the conduction band without a change in crystal momentum. Momentum change जरूर होता है. तो इनडायरेक्ट बैंड गैप के एग्जाम्पल के मटेरियल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, अल्युमिनियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फॉस्फाइड. Now let us see how we can differentiate between conductors, insulators and semiconductors. Let us consider a band. ये तो आपको पता है कि the band has got this type of structure. Along horizontal axis we plot K and along vertical axis we plot energy E. So the band has got extreme values of A as right hand side, positive value plus pi by A, और नेगेटिव साइड पे माइनस पाई बाई ए. लेकिन हम k का वैल्यू कोई इंटरमीडिएट लेंगे. सपोजिंग हियर कि हमारा जो बैंड है वो यहां तक फिल्ड है, हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड. सो हियर the value of k, supposing it is k1. k1 is any general value of k. फिर जो k1 है इसको हम वैल्यू 0 भी देंगे, फिर हम इसको वैल्यू पाई बाई a भी देंगे. उसको हम बहुत सारे वैल्यूज दे सकते हैं. फिलहाल हम कहेंगे that we have got a band which is partially filled, और जो maximum value of wave vector है that is k1. It is filled up to k1 and this k1 is less than pi by a. अच्छा, ये भी देखें कि अगर हम स्लोप डालें इस ग्राफ पे एट द टॉप ऑफ बैंड, तो दैट विल कम फ्लैट. दैट इज DE by DK is 0 at the top as well as at the bottom. Okay. So the number of energy states will be given by dN is equal to L by 2 pi dk. राइट, ये हमें इक्वेशन अभी अभी मिली है, तो इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे एंड वी शैल सी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. ऑब्वियसली द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम -k1 टू +k1 अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है. चूंकि हर कोई स्टेट दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करती है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट ट्वाइस. सो n will be equal to, हम dn को इंटीग्रेट करेंगे और the limits of integration will be -k1 to +k1. लेकिन 2 क्यों है? Because each energy state contains a maximum of 2 electrons. तो हम इसमें dn सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है इफेक्टिव फ्री इलेक्ट्रॉन. कि इलेक्ट्रॉन कितने एक्सटेंट तक फ्री है, तो इसमें हम dn के साथ ये फैक्टर b इंसर्ट करेंगे. दिस फैक्टर गिव्स मी के एक इलेक्ट्रॉन कितने एक्सटेंट तक फ्री है. अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा कि सिंस दिस dn इज एन इवन फंक्शन, तो -k1 टू +k1 को हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0 टू k1, बट वी विल यूज ए ट्वाइस, राइट. और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो इट विल बिकम 4. सो वी गेट 4 टाइम्स 0 to k1 fk dn. Now we will substitute the values of fk as well as dn. तो fk जो है, it is a measure of extent up to which an electron is free. So fk का वैल्यू ये है. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया है, m by h bar स्क्वायर d स्क्वायर e by dk स्क्वायर. तो दिस इज n इफेक्टिव. इसमें हम fk का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज m by h bar स्क्वायर d स्क्वायर e by dk स्क्वायर. dn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज l by 2 pi dk. दिस 2 will make this 4 as 2.
तो वी आर लेफ्ट विद 2l भी बाहर निकलेगा, 2 विल मेक 4s2, पाई भी बाहर निकलेगा डिवीजन में, m भी कांस्टेंट है और h बार स्क्वायर भी, तो ये सारे के सारे बाहर निकलेंगे। तो इंटीग्रेशन में हमें फिर क्या मिलता है, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। ये जो डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर है, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेव वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी के ऑफ डी ई बाई डी के, यानी पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे दिस डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल विल गो, दिस डी के एंड डी के विल गो, तो इंटीग्रेट करके हमें मिलेगा डी ई बाई डी के, लेकिन के का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू k1। तो हमें n इफेक्टिव, द नंबर ऑफ इफेक्टिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है 2lm by pi de by dk, where k has the value k1, जहां तक ये बैंड फिल्ड है। तो if the band is completely filled, हमें n इफेक्टिव का वैल्यू मिला 2lm by h bar square pi into de by dk, where k has the value k1, k1 is up to filled, ये कहां तक filled है। तो if the band is completely filled, so that means we reach top of the band, और वहां पे ये de by dk 0 बनता है, तो that means n इफेक्टिव भी 0 मिलेगा। तो दैट मीन्स के अगर एक कंप्लीटली फिल्ड बैंड है तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑल्सो जो डीई बाई डी के है, इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट द इनफ्लेक्शन पॉइंट। तो दैट मीन्स कि अगर कोई बैंड फिल्ड है अप टू इनफ्लेक्शन पॉइंट, तो de by dk has got maximum value, so that means n effective has also got maximum value. So अगर कोई बैंड फिल्ड है up to the point of inflection, it has got the maximum number of free electrons. तो यहाँ पे हम दो बैंड डिफाइन करते हैं, एक तो है वैलेंस बैंड which is the top most outermost band which can be completely or partially filled, तो उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। उस वैलेंस बैंड के ऊपर जो एक और बैंड है which is completely empty at 0 Kelvin, तो उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। Now we can differentiate between metals, insulators and semiconductors. Metals or which have got very low resistivity, उनकी resistivity ranges from 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 2, और इनमें जो number of free electrons है that is of the order of 10 raised to power 29 per cubic meter. Lots of what I mean to say, free electrons, free electron density. Number 2 is insulators. They have got very high resistivity. उनके resistivity ranges from 10 raised to power 11 to 10 raised to power 19. और अगर हम यहाँ पे इनकी free electron density देखना चाहें, that is around 10 raised to power 12 per cubic meter. And next, semiconductors, they have got resistivity or conductivity intermediate to metals and insulators. तो इनकी resistivity है 10 raised to power minus 5 to 10 raised to power 8. तो इनकी जो free electron density है that is around 10 raised to power 18 per cubic meter. अगर हम किसी भी मटेरियल को, चाहे सेमीकंडक्टर को चाहे इंसुलेटर को, 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर तक ले जाएं, दैट मींस वी आर सप्लाइंग एन एनर्जी ऑफ kT, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इंसुलेटर्स में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज लाइक 4 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा हम देखें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ transition making of an electron from valence band to conduction band equals exponential minus band gap divided by twice kT, और ये हमें मिलता है 10 raised to power minus 35, so negligible. So even at room temperature there is negligible probability that an electron can make transition from valence band to conduction band. Hence no conduction possible in insulators. एनर्जी गैप इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं किया जा सकता बाय थर्मल एक्साइटेशन इन इंसुलेटर्स। नाउ लेट अस चेक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो बेसिकली है इंसुलेटर्स ही, बट दे डिफर इन डिग्री नॉट इन टाइप। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एक ही किस्म की स्पीशीज है, फर्क सिर्फ डिग्री में है। डिग्री का मतलब है कि एक सेमीकंडक्टर में बैंड गैप 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है कम, एज कंपेयर टू लेस एज कंपेयर टू इंसुलेटर। अदरवाइज है तो इंसुलेटर ही एट 0 केल्विन। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे ले जाएं तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ an electron making transition from valence band to conduction band equals exponential function of minus band gap by twice kT, और ये हमें मिलता है 10 power minus 2, 0.01। इसको अगर हम परसेंट में लिखना चाहें we will multiply 100, we get 1%। तो आउट ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रांजिशन कर सकता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हेंस सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यू कैन सी कि जो कंडक्टर है इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हुए होते हैं। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में काफी डिफरेंस है और इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो टू कंडक्शन बैंड। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो बीच में है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बैंड गैप तो है, बट दैट बैंड गैप इज वेरी वेरी स्मॉल एज यू कैन सी। In case of germanium, it is 0.67. In case of silicon, it is 1.1. In case of gallium arsenide, it is 1.43. So an electron can make transition from valence band to conduction band, and hence it can conduct electricity.